Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the class. Our today's topic is law of segregation. Let's start with the definition of this law. According to this law, every organism has two alleles per trait and that these alleles separate during meiosis, so each gamete gets one allele. Mean every organism has two alleles. For example, if we have a character that is the eye color, it has different traits like it may be blue, red, or brown. So every trait has two alleles and that these alleles separate during meiosis. So each gamete gets one allele. Mean at the time of fertilization, every gamete has one kind of allele that it obtained from one parent. यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में एक अलील जो है वो उसके एक पेरेंट से ट्रांसफ़र होती है. That is the law of segregation. How the gene separates. The law of segregation says that organisms have two copies of every gene. These copies are actually the allele, and that they get one copy of each gene from each parents. So according to this law of segregation, हर ऑर्गेनिज्म के पास हर जीन की दो कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, और उनमें से जो ऑफस्प्रिंग है वो एक कॉपी जो है वो एक पेरेंट से लेगा और दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे पेरेंट से लेगा. सो इट इज़ आल्सो वेरी क्लोज टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, and it also states that the law of segregation is the equal to the law of independent assortment, or it is closely related to the independent assortment. According to this law, during gamete formation, genes for different traits segregate independently of each other. मीन कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो हर जीन जो है वो सेपरेटली जो है या हर ट्रेट जो है वो सेपरेटली सेग्रीगेट करती है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. For example, let's explain it with the help of an example. Here in the figure you can see that one male and the one female cross, that is lumpy species. Lumpy species, the gene for lumpy mean is capital L, यानी कि एक थोड़ी सी बल्कि स्पीशी है जिसको कैपिटल L से डोनेट किया गया है, and it is the dominant gene, while the other gene is recessive because it is less lumpy and it is donated by the small l. Two heterozygous lumpies with genotype LL. Heterozygous mean that they both have the different alleles. One is capital L and other is small l. With genotype LL, so one is the dominant and other is the recessive. This result is known as the monohybrid cross. Here you can see that capital L and small l, when make a cross with capital and small l, both are the heterozygous parent. So the three are the lumpy because they have the capital L as a dominant gene, while one is the recessive with the less lumpy appearance. So this is the proof that one of the gene is always dominant and other gene is recessive, and each parent transfer one of his gene to the further next generation. मीन हर ऑफस्प्रिंग में एक एक जीन जो है वो उसके एक एक पेरेंट से आएगी. एक एक पेरेंट से मतलब क्या, एक जीन फादर से आएगी और एक जीन क्या है जो मदर से आएगी. तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि जब हम एक क्रॉस करवाते हैं हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म का, जो किसी भी जीन के लिए जो वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि उसके अंदर दो अलीज हैं. एक जो कैपिटल में फॉर्म में होगी वो हमेशा डोमिनेंट होगी और जो स्मॉल में होगी वो हमेशा क्या होगी, रिसेसिव होगी.
तो जो F1 जनरेशन होंगे उसमें जो 3 जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे और एक जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, इन केस अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कैपिटल एल है और दूसरा भी कैपिटल एल होमोजाइगस डोमिनेंट है, और दूसरा जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, मीन उसमें दोनों जो जीन्स हैं वो स्मॉल एल हैं, तो इसमें जो F1 होगी वो सारी की सारी जो होगी वो मोर लंपी होगी, मीन दोनों में जो है वो डोमिनेंट जीन्स आएंगी, लेकिन वो हेट्रोजाइगस होंगी, यानी कि एक जीन जो है वो कैपिटल एल एक पेरेंट से आएगी और स्मॉल एल जो है वो दूसरे पेरेंट से आएगी, लेकिन ये जीन जो होगी वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी बट हेट्रोजाइगस। और अगर इसी हेट्रोजाइगस को, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है, कैपिटल और स्मॉल एल जो कि F1 जनरेशन थी, इसको जब आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो तब रिसेसिव जीन जो है वो भी अपीयर होगी। किस तरह से कि हर गैमेट यानी कि हर पेरेंट जो है वो अपनी इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो 3 जो है 3:1 की रेशो से 3 जो है वो डोमिनेंट होंगे और 1 जो है वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब 3 डोमिनेंट में भी अगर आप देखो तो 1 कैपिटल जो है ये प्योर ओरिजिनल पेरेंट से मिलता है, जबकि 2 जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं, कैपिटल एल और स्मॉल एल। लेकिन जो इधर आप देखो तो कैपिटल एल और कैपिटल जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव आएगा, डेट इज स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। We can see that the dominant and the recessive alleles from the parents have been distributed to the offspring. As a result, each of the offspring has 2 alleles for this trait. That is actually what the law of segregation says. According to this law, dominant and the recessive are the alleles that are present in the parents. One of the dominant gene transfer to the offspring, and other parent transfer is recessive gene. So the each offspring has the 2 allele for that particular trait, मीन हर पेरेंट जो है वो अपनी एक allele जो है वो ट्रांसफ़र करेगा टू द offspring. On a molecular level, the law works because of how chromosomes separate during meiosis. तो सेग्रीगेशन जो है इसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस, जब क्रोमोसोम्स में जो ड्यूरिंग द क्रोमोसोम्स and at the time of meiosis. When we form gametes during meiosis, अब गैमेट में जब जब मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन होती है तो द होमोलोगस क्रोमोसोम गेट रैंडमली सेपरेट, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होता है, रैंडमली सेपरेटेड होती है, यानी कि उनमें कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता कि इसी पैटर्न से उन्होंने जो है वो सेपरेट होना, दे सेपरेट रैंडमली into the daughter cells. This is that gametes have half the normal number of chromosomes. ठीक है, तो जब मियोसिस होगी हमें पता है कि ड्यूरिंग द मियोसिस एक सेल जो है वो चार सेल में जो है वो डिवाइड करता है, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर हैप्लॉयड, मीन एंड डिप्लॉयड नहीं होते, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता बल्कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लाइक इन ह्यूमन बींग्स अगर 26 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें जो 23 हैं वो क्या हो जाएगा, हाफ सेट ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस में ट्रांसफ़र होगा, डॉटर सेल्स में. तो हैप्लॉयड गैमेट्स कम टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट. तो डिप्लॉयड जाइगोट कब बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट तब बनेगा, जाइगोट हमारे पास बनेगा जब हैप्लॉयड गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे. फ्यूजन होगी तो डेफिनेटली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा. Now we can explain it further that how do genes end up in different gametes, यानी कि किस तरह से gametes में different genes जो हैं वो transfers होती हैं. तो इसको जो है it is one of the fundamental law of the genetics that is given by the Mendel, and it is the law of segregation. According to this law, gametes mean the egg and the sperm. During meiosis, the pair of alleles for each gene separate, यानी कि अगर हमारे पास 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इट इज़ अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन.
तो आप देख सकते हो जैसा कि ऑरेंज, स्काई ब्लू और ग्रीन, ये 3 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो जब इनके पॉसिबल गैमेट्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 पॉसिबल गैमेट्स इनके बनेंगे, ठीक है। और इन चारों पॉसिबल गैमेट्स में आप देख सकते हो कि हर सेट के अंदर जो है वो हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो 4 क्यों बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग द मायोसिस एंड में जो है वो एक सेल जो है वो 4 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इनके अंदर हर एक के अंदर जो है वो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो हर पेरेंट से एक एक जो है वो पेयर वो ट्रांसफ़र होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन। द 2 कॉपीज़ ऑफ ईच जीन सेपरेट एंड एंड अप इन द डिफरेंट गैमेट्स। तो ये जो है रैंडमली सिलेक्शन है, ठीक है। ये नहीं है कि जी एक ही फैशन में हुआ है, तो हर पेरेंट से एक एक जीन जो है वो नेक्स्ट एक एक अलील आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी, विच मीन्स दैट द गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आप देख सकते हो कि इनके हाफ सेट जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का, यानी कि अगर 3 पेयर्स हैं तो वो मीन के डिप्लॉइड्स हैं, ठीक है। और उनका एक एक पेयर जो है वो हाफ सेट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है। So this is how the genes end up in different gametes, and this is the classical genetics, and it is the law of segregation. How all this process occurred? क्या होता है सारे में कि when the sperm cell and the egg cells unite during fertilization, हमें पता है कि जब कभी भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से यूनियन करता है तो दिस प्रोसेस नोन एज द फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इट्स मीन कि डीएनए फ्रॉम ईच सेल इज कंबाइंड, यानी कि जो पेरेंट मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है इनका जो है डीएनए वो क्या होगा, कंबाइन होगा, ठीक है। तो उसमें जो है 2 कॉपीज़ ऑफ ईच जीन होगी, यानी कि हर पेरेंट से ए जीन जो है वो ट्रांसफ़र होंगी। देयरफॉर वी से दैट दिस न्यू सेल इज़ डिप्लॉयड, ठीक है। इसको 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो इसका मतलब है दैट इज़ डिप्लॉयड। दिस लॉ हैव एस्टेब्लिश वाई वी गेट हाफ ऑफ आवर डीएनए फ्रॉम ईच ऑफ आवर पेरेंट्स। ज़ाहिर फर्टिलाइजेशन होगी, आधे क्रोमोसोम जो है वो एक पेरेंट से आएंगे, आधे जो है वो दूसरे पेरेंट से आएंगे। इस मीन के हाफ डीएनए जो है वो एक पेरेंट से आएगा, हाफ डीएनए जो है वो दूसरे पेरेंट से आएगा। तो दिस इज़ हाउ वी गेट द डीएनए फ्रॉम ईच पेरेंट्स एंड हाउ सर्टन ट्रेड्स आर पास डाउन। तो यही वो वजह है कि डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो पास डाउन होती हैं, वाइल अदर्स आर नॉट। दिस आल्सो गोज हैंड इन हैंड विद मैंडल्स सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? दिस लॉ स्टेट्स दैट allele ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड सेपरेटली एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि हर ट्रेड जो है वो सेपरेटली जो है वो और इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रांसफ़र होती है टू द नेक्स्ट जनरेशन। Now let me explain few of the definitions that we have used in the law of segregation. The first terminology was the dominant gene or the dominant allele or the dominant traits, यानी कि हम बार बार एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डैट इज़ डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट ट्रेट। एक्चुअली ये होता क्या है? अ डोमिनेंट अलील इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिनोटाइप व्हेन देयर आर 2 डिफरेंट अलील्स फॉर अ जीन प्रेजेंट, यानी कि जो भी फिनोटाइप क्या है? फिज़िकल ऑब्जर्वेशन। तो फिज़िकली जो हमें नज़र आ रहा होता है तो उसके अंदर जो है हर पेरेंट के अंदर जो जो एक्सप्रेशन होता है, जो जीन एक्सप्रेस्ड होती है, डैट इज़ एक्चुअली द डोमिनेंट जीन और इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट और इट इज़ अ डोमिनेंट अलील। फॉर एग्जांपल अगर 2 पेरेंट्स हैं हमारे पास, एक की ब्लू आई हैं और एक की ब्राउन आइज़ हैं, ठीक है। तो ये आई कलर की 2 डिफरेंट ट्रेड्स हैं। तो ये करैक्टर कैसे ट्रांसफ़र होगा? आई कलर क्या है? एक आई कलर जो है वो एक करैक्टर है और आगे से उसके ब्लू, और अगर हमारे पास ब्राउन आई है तो डैट इज़ द डिफरेंट ट्रेड्स। तो ये अलील्स हैं, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है डैट इज़ ब्राउन आई, इस मीन कि जो पेरेंट ब्राउन आई है डैट इज़ द डोमिनेंट, ठीक है। तो इस तरह से जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन जो ऑस्प्रिंग होगा वो कैरियर होगा ब्लू आइज़ का भी। इट्स मीन कि इस पेरेंट के इस ऑस्प्रिंग के अंदर एबिलिटी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब उसको सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो हमारे पास एक ऑस्प्रिंग जो है वो क्या आएगा? ब्लू आई आएगा, और जबकि
तीन जो हैं वो कौन से आएंगे, ब्राउन आइज आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट द डोमिनेंट अलील और जीन और द ट्रेट मीन्स, यानी कि जो एक्सप्रेशन में आती है सबसे पहले F1 जनरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट अलील कहते हैं। देन इज़ द हेट्रोजाइगस वर्सेस होमोजाइगस, यानी कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोजाइगस मींस टू कॉपीज़ ऑफ द सेम अलील, यानी कि अगर हमारे पास एक स्मॉल एल है तो एक जैसी अलील की जो कॉपीज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। सच एज डोमिनेंट अलील, अगर दो हमारे पास डोमिनेंट अलील है, कैपिटल एल, जैसे हमने लंपी केस में देखा, तो उसमें जो कैपिटल एल है डैट इज़ द डोमिनेंट अलील। और हेट्रोजाइगस मीन वन ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटल और स्मॉल एल जो था वो F1 जनरेशन थी, फिनोटिपिकली वो थी लंपी। अब वो अगर हम उसको जीनोटिपिक देखें तो उसका जो था जीनोटाइप्स, वो जीन्स कैसी थी, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। तो जिसमें दोनों लीन्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन तभी होगी जब एक पेरेंट एक जीन ट्रांसफ़र करता है और दूसरा पेरेंट जो है वो दूसरी जीन ट्रांसफ़र करता है, और उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमें बताता है कि विच जीन इज़ डोमिनेंट एंड विच जीन इज़ रिसेसिव। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, यानी कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ होमोजाइगस हैज़ टू कॉपीज ऑफ द सेम अलील, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमोजाइगस वो इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर दोनों कॉपीज़ जो हैं वो अलील की सेम होती हैं। एन अलील एक्चुअली है क्या, इट इज़ द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। ह्यूमन्स एंड अदर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव टू कॉपीज़ ऑफ एवरी जीन, यानी कि हर जीन की दो कॉपीज़ होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो हैं दे हैव द टू कॉपीज़ ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। अगर आप डायग्राम में देखो इजीली हम बता सकते हैं कि होमोजाइगस कौन सा है, हेट्रोजाइगस कौन सा है, ठीक है। होमोजाइगस मीन कि अगर आप ये क्रोमोसोम का पेयर देखो तो दे आर इक्वली सिमिलर, ठीक है, दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, उनमें बिल्कुल भी दोनों, फॉर एग्जांपल हमने इनको पर्पल कलर से डोनेट किया है, ठीक है। तो तो ये क्या है, होमोजाइगस है। अगर हम हेट्रोजाइगस देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर एक ब्लू है और एक क्या है, ग्रीन है, तो दोनों पेयर जो है वो डिफरेंट है, इसको हम क्या कंडीशन कहेंगे, हेट्रोजाइगस है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो होमोजाइगस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉल एल है, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, एक कैपिटल एल है और स्मॉल एल है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो जो है वो क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के अंदर डिफ्रेंसिएशन है। फॉर एग्जांपल हम कैसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जीनोटाइप क्या है, सम ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिनोटाइप क्या है, द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम अपीयरेंटली जो भी हमें ऑर्गेनिज्म में नज़र आता है वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप क्या है, जो हमारे अंदर जो जीन्स हैं उसके सेट जो होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। डोमिनेंट को इजीली हम क्या कह सकते हैं, द स्ट्रोंगर ऑफ टू एक्सप्रेस जीन, यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन में आ जाती है फर्स्ट जनरेशन में उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव क्या है, डेफिनेटली इट इज़ द ऑपोजिट टू डोमिनेंट। इसमें क्या होता है, द वीकर ऑफ टू एक्सप्रेस जीन्स, यानी कि जो वीकेस्ट जीन है वो एक्सप्रेशन है, ओनली शोन इफ अ जीन इज़ होमोजाइगस रिसेसिव, और ये तभी शो होगी जब दोनों जो पेरेंट है वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। हेट्रोजाइगस मैंने आपको बताया कि बोथ हैव द डिफरेंट अलील, फॉर एग्जांपल कैपिटल एल स्मॉल एल। होमोजाइगस के बोथ हैव द सेम अलील, ये डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं। डोमिनेंट कब होगी, जब कैपिटल एल होगा। रिसेसिव कब होगी, जब स्मॉल एल एंड स्मॉल एल होगा। पनट स्केयर क्या होता है, पनट स्केयर एक्चुअली अ मेथड डिटर्मिनिंग द ऑड्स ऑफ विच ट्रेट द ऑफस्प्रिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म विल इनहेरिट, यानी कि कौन सी जो है वो ट्रेट जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस में शो होगी। अब आता है रिसेसिव। रिसेसिव क्या है, रिसेसिव अलील विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड एज अ फिनोटाइप व्हेन देयर इज़ नो डोमिनेंट अलील।
जब हमारे पास कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं होती तो फिनोटाइप तब कब आएगी, हमारे पास एक्सप्रेशन में आएगी, ठीक है। यानी कि जब दो स्मॉल एल आपस में मिल जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान नेक्स्ट जनरेशन में, फॉर एग्जांपल जब हमने क्रॉस करवाया हेट्रोजाइगस पेरेंट का, सेल्फ क्रॉस करवाया, तो इनमें से डेफिनेटली एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो रिसेसिव ट्रेट के साथ जो है वो हमारे पास अपेयर होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द रिसेसिव। डोमिनेंट हमेशा वही होगा जो F1 जनरेशन में अपेयर होगा। तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं रिसेसिव जो जीन है वो F1 जेल में एक्सप्रेस तो नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है यानी हेट्रोजाइगस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन रिसेसिव अलील जो है वो तब होंगी जब हम एक हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाते हैं या हमारे पास बिल फर्स्ट जो दोनों पेरेंट्स हैं वो रिसेसिव अलील के साथ हैं। इनके जो पेरेंट मेल है वो भी स्मॉल एल है और जो फीमेल है वो भी स्मॉल एल के साथ। तो यानी कि डोमिनेंट अलील जब हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी तो तब जो है वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है कि वो F1 जनरेशन में अपीयर होंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब हम फर्दर इसको किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं रिसेसिव कंडीशन को। अ रिसेसिव अलील इज़ द अलील दैट इज़ यूजुअली ओवरशैडोड बाय द डोमिनेंट अलील, यानी कि इसको जो है हमेशा डोमिनेंट अलील जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। दिस मीन दैट दिस अलील इज़ लेस लाइकली टू बी एक्सप्रेस, यानी कि ये जीन जो है वो एक्सप्रेशन में नहीं आती F1 जनरेशन में अगर हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट ओरिजिनल पेरेंट्स जो हैं जो प्योर ब्रीडर्स हैं वो डोमिनेंट अलील के साथ प्रेजेंट हैं। रिसेसिव अलील्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर, इसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से या लोअर केस लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिक्वायर 2 कॉपीज़ टू बी एक्सप्रेस्ड, और अगर ये एक्सप्रेशन में तभी आएगी जब हमारे पास 2 कॉपीज़ होंगी। अगर ये सिंगल कॉपी फॉर्म में होगी तो ये एक्सप्रेशन में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे एक पनट स्केयर मेथड भी आप देख सकते हो कि पनट स्केयर एक्चुअली होता है कि हमारे पास एक मेल पेरेंट्स है डैट इज़ ब्राउन आई, ठीक है। अब वो हेट्रोजाइगस है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी के साथ, और एक हमारे पास जो फीमेल पेरेंट्स सपोज कर लें वो है ब्लू आई के साथ, और उसमें दोनों जीन्स जो हैं वो क्या हैं रिसेसिव में स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के गैमेट बन रहे हैं, एक कैपिटल बी और एक क्या बन रहा है स्मॉल बी। तो कैपिटल बी जब स्मॉल बी के साथ मिलेगा तो क्या होगा, पेरेंट जो है जो ऑफस्प्रिंग है वो ब्राउन आई है। तो दूसरे में भी आ सकते हो कि ये कौन सा ब्राउन आई है, जब क्या स्मॉल बी से मिलेगा तो पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों जो हैं वो क्या होंगे ब्राउन ब्लू आइज होंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सप्लेन द रिसेसिव अलील इन अ पनट स्केयर मेथड। तो रिसेसिव अलील वही है तभी एक्सप्रेस होगी जब वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अलील। अलील एक्चुअली है क्या? अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ अ जीन, यानी कि ये जीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। इसको हम अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी कह सकते हैं। डेट आर फाउंड एट द सेम लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम, यानी कि अलील्स वहीं पे प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। इंडिविजुअल इनहेरिट वन ऑफ दीज फ्रॉम ईच पेरेंट, तो हर इंडिविजुअल के अंदर हर चिल्ड्रन के अंदर एक अलील जो है वो एक पेरेंट से ट्रांसफ़र होगी और दूसरे अलील जो है वो दूसरे पेरेंट से ट्रांसफ़र होगी। हम अलील को ईजिली डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख सकते हो देयर आर 2 काइंड ऑफ फ्रॉग्स, और दोनों जो हैं वैसे तो दे सेम हैं लेकिन फ़र्क क्या है कि दे हैव द डिफरेंट स्किन कलर। स्किन क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है, और आगे कलर्स उसके क्या आ जाते हैं, ट्रेड्स आ जाते हैं। तो स्किन कलर की ज़ाहिर है डेफिनेटली उसको जीन कंट्रोल करती हैं, तो हर जीन जो है वो अलीलिक फॉर्म में प्रेजेंट है। इन द केस ऑफ द फ्रॉग दे हैव द सेम सेट ऑफ जीन्स, दोनों में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सेम सेट ऑफ जीन्स होंगी, बट दे हैव वेरी डिफरेंट अलील, लेकिन इनकी अलील जो हैं वो डिफरेंट हैं। क्यों? बोथ फ्रॉग्स हैव स्किन विच मीन्स दे बोथ हैव जीन्स फॉर द स्किन डेवलपमेंट। ज़ाहिर है डेफिनेटली स्किन कलर जो है वो उन जीन्स जो हैं स्किन की वो स्किन कलर डेवलप करेंगे। हाउएवर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन विच डिटरमिन द कलर ऑफ द स्किन इज़ नोन एज द अलील।
तो जीन्स कलर डेवलपमेंट की दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन वो जो इनके आगे से फिनोटाइप को शो करेगी, डिफरेंट कलर्स जो शो करेगी, वो क्या है, अलील. सो वन फ्रॉग हैज़ द ग्रीन स्किन अलील एंड द अदर हैज़ द ब्लू स्किन अलील, बट बोथ फ्रॉग्स हैव अ जीन फॉर स्किन. तो दिस इज़ हाउ द जीन एंड द अलील आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यानी कि हर जीन जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो उसको हम क्या कह सकते हैं, अलील कह सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्किन जीन्स तो दोनों में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनमें स्किन डेवलप हुई, लेकिन इनके अंदर जो वेरिएशंस आई हैं डैट इज़ ड्यू टू द अलील, क्योंकि हर जीन की अपनी डिफरेंट अलील जो हैं वो होती हैं. अगर हम वोकैबुलरी रिव्यू की बात करें तो क्या है, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इज़ अ लॉन्ग सिंगल क्वाइल्ड पीस ऑफ डीएनए. हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम. इट इज़ एक्चुअली अ पीस ऑफ डीएनए. डीएनए क्या है, द मैक्रो मॉलिक्यूल दैट स्टोर ऑफ ऑल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स में दीज टर्मिनोलॉजीज आर रिपीट इट अगेन एंड अगेन. तो डीएनए इज़ द मैक्रो मॉलिक्यूल like protein and RNA that stores all of an organism's genetic information. हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, हमारा जो है वो इनहेरिटेड मटेरियल है, और इसके अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म की, वो कहाँ पे स्टोर होती है, डीएनए में होती है. नेक्स्ट आता है जीन. अ डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट और प्रोटीन. जीन क्या है, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए डेट कोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ प्रोटीन. यानी कि जीन जो है वो आगे जाके एक्सप्रेस्ड होती है स्पेसिफिक ट्रेट के अंदर और प्रोटीन के अंदर. अलील क्या है, जीन ऑफ द सेम टाइप डेट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल आई कलर जीन्स जो हैं वो आगे उसकी अलील्स आ जाती हैं जो कि आई कलर को कंट्रोल करती हैं. फॉर एग्जांपल वो ब्लू अलील्स भी हो सकती हैं, वो येलो ग्रीन अलील्स भी हो सकती हैं, वो ब्राउन अलील्स भी हो सकती हैं. ठीक है. अब हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक फ्लावर जो है वो रेड कलर का है, ठीक है, दीज आर द पेरेंट जनरेशन, और एक फ्लावर जो है वो वाइट कलर का है. अब दोनों की अगर हम जीनोटाइप देखें तो जो रेड कलर है उसकी दोनों जो जीन्स है वो कैपिटल आर है, ठीक है, अपर केस लेटर में इसको रिप्रेजेंट किया गया है. और जो दूसरा वाइट फ्लावर है उसकी जो जीन्स हैं वो स्मॉल आर और स्मॉल आर है. बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर देयर करेक्टर. तो रेड फ्लावर जो है उसकी दोनों जीन्स होमोजाइगस हैं, ठीक है, जबकि वाइट फ्लावर है वो भी होमोजाइगस है. क्यों, क्योंकि दोनों अलील्स जो हैं वो एक जैसी हैं. और इनके अगर जब गैमेट फॉर्मेशन होएगी तो आर एक जो पेरेंट है उससे कैपिटल आर आएगा, ठीक है, रेड अलील ट्रांसफ़र होगी, और जो दूसरा पेरेंट है उससे वाइट अलील ट्रांसफ़र होगी, डैट इज़ स्मॉल आर. और जब हम इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो फर्स्ट जनरेशन आएगी, जो जायगोट आएगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर. और उसकी अगर हम फिनोटाइप देखें तो डैट इज़ रेड, और अगर इसके हम जीनोटाइप देखें तो डैट इज़ डिफरेंट, और इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं. पेरेंट्स आर होमोजाइगस बिकॉज दे हैव द सेम जीन्स और द सेम अलील्स, while the generation next is the red in color, that means the red color is dominant, or they have the phenotype is red and the genotype is capital R small r, and this is known as the हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो जब होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं तो उन वो जो जनरेशन है वो हमेशा कौन सी आएगी, हेट्रोजाइगस आएगी. यानी कि हर पेरेंट से एक अलील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी. अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं किसकी, एग्जांपल देखते हैं किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. डैट इज़ प्योर टॉल प्लांट है हमारे पास और एक प्योर डवार्फ प्लांट है. यानी कि हमारे पास पेरेंट जो है वो प्योर ब्रीडर्स हैं, जिसमें जो एक पेरेंट जो है वो टॉल है, उसकी जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, जबकि जो दूसरा पेरेंट है डैट इज़ होमोजाइगस फॉर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है. तो अगर हम इसकी गैमेट फॉर्मेशन करें तो एक पेरेंट से कैपिटल टी आएगा और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आएगा, और जब इनको आपस में इनकी जब फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे, तो जो फर्स्ट जनरेशन आएगी जो इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है.
तो इसमें हम सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को स्टडी करते हैं। तो कैपिटल डी स्मॉल टी क्या है हमारे पास, मोनोहाइब्रिड, और ये हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि या इसको हेट्रोजाइगस टॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक जीन जो है वो कैपिटल टी आई और दूसरी जो स्मॉल टी, लेकिन जो इसकी फिनोटाइप है वो क्या है, द ऑफस्प्रिंग इज टॉल। इट्स मीन जो टॉल करेक्टर है डेट इज डोमिनेंट वन, वाइल द ड्वार्फ करेक्टर यानी कि जो स्मॉल हाइट है वो क्या है, एक रिसेसिव करेक्टर है। तो गैमेट फॉर्मेशन जब हम इनकी आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब हम आपस में सेल्फ क्रॉस कराएंगे, जो कि हमारे पास F1 फॉर्मेशन आएगी, तो उसको हम इसे पनेट स्केयर से करें तो हमारे पास दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे फीमेल गैमेट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 तरह के बनेंगे। तो 3 जो है वो आप देख रहे हो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल है और एक जो है वो ड्वार्फ है, यानी कि 3:1 की रेशो आई। अब 3:1 रेशो में भी आप देखो तो इसको हम 1:1 कह सकते हैं। 1:1 का मतलब है एक पे ऑफस्प्रिंग जो है वो प्योरली टॉल है, जिसको जो कि कैपिटल टी से जिसको डोनेट किया गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट जो है, और जो दो हैं स्मॉल टॉल वो है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दे आर द हाइब्रिड, दे आर द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि इसके अंदर जो है वो हिब्रिडाइजेशन है, यानी कि एक जीन जो है वो डोमिनेंट है और दूसरी जीन क्या रिसेसिव है, ठीक है। और जबकि एक हमारे पास प्योर ड्वार्फ आया है जो कि अपने ओरिजिनल पेरेंट से मिलता है, दैट इज़ ट्रू स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो हमें ये पता चला, जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, कि रिसेसिव अलील तभी एक्सप्रेस होगी व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। तो ये तभी, और इसके अलावा ये तब ट्रांसफ़र होगी जब दोनों पेरेंट्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे फॉर अ सर्टन करेक्टर, तो तभी ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखें तो वो क्या है, 3 टॉल आए हैं 1 ड्वार्फ है, यानी कि 75% टॉल आए हैं, 25% जो ड्वार्फ है। और अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो देखें तो 1:1 की है। 1:1 की रेशो क्यों है कि 1 जो है वो ओरिजिनल प्योर टॉल है, 2 जो है वो हाइब्रिड टॉल है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्योर ड्वार्फ है यानी कि कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि इस लॉ के मुताबिक हर पेरेंट जो होता है उसके गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान एवरी ट्रेट और हर अलील जो है वो सेग्रीगेट होती है, ठीक है, और हर ऑफस्प्रिंग में एक जो अलील है वो एक पेरेंट से ट्रांसफ़र होती है। इन केस ऑफ अगर हम पी प्लांट की बात करें, जिसे हम पाइसम 31 भी कहते हैं, जो कि मेंडल का एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, जिस पे इसने सारे के सारे जो हैं वो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो उसने पी प्लांट पे किए थे। तो आप ये देखो, ये जो पी है वो क्या है, ग्रीन इन कलर है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने एक ग्रीन कलर का जब येलो कलर से क्रॉस करवाया, तो उसने ये देखा जो ऑफस्प्रिंग था, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, यानी कि एक उसने प्योर ब्रीडर जो था वो ग्रीन लिया और एक उसने प्योर ब्रीडर जो था वो येलो लिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि येलो है। इससे क्या पता चला कि दोनों जो हैं वो डोमिनेंट हैं। तो सॉरी, येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो और अगर हमारे पास दोनों जो हैं वो ग्रीन होंगे तो हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, वो भी ग्रीन ही आएगी, रिसेसिव आएगी। और अगर हमारे पास दोनों जो हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं तो हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, डोमिनेंट आएगी। और अगर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस है और एक जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एक जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, तो हमारे पास 50% जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव आएंगे और 50% जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आएंगे। So this is all about the Mendel's first law, that is law of segregation, is the law of inheritance. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्यों है, क्योंकि ये हमें बताता है कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन तभी ट्रांसफ़र होंगी जो कि एक पेरेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। रिसेसिव जीन तब ट्रांसफर होंगे जब हमारे पास डोमिनेंट जीन नहीं होगी। तो डेट इज़ ऑल अबाउट द मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इट इज़ आल्सो नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
See you next time with another lecture that will be on Mendel's second law of inheritance, that is law of independent assortment. See you next time in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.